Hello everyone, welcome back, and I hope all of you are doing quite good. Okay, so as everybody knows that we have already started with our module 2, and in our first lecture we have understood that uh, what we have to do in this course and how we are going to proceed about the things that we are going to study. Then I told you that the first chapter or the first thing that we are doing in this module 2 is system of linear equations. Then we understand basic things about system of linear equation, how the system looks like, and obviously we were focusing only upon the n cross n system of linear equations. So after that we understood how many number of ways are there or the methods are there to evaluate the system of linear equation or solving the system of linear equation. So we saw there are two classes, that are direct methods and the iterative methods, also called as indirect methods. So after that we covered what are direct methods, what are iterative methods, what is the big difference between them. So we understood, okay, direct methods are the ones which transforms the original equations to the equivalent equations by using elementary operations, because equivalent equations do have the same solution, and that makes our computation basically very easy, and hence we are doing that. So, and indirect methods or the iterative methods, as the name itself says, iterative methods. So they are dealing with a characteristic like we start with a guess, or that is our initial solution, that is our guess solution, and then we repeatedly iterate, or we can say that repeatedly we refine the solution until a certain convergence criteria is reached, and that's how we reached to our solutions. And we also looked at the iterative methods are low efficient as compared to their counterparts, direct methods, because of quite number of large iterations. But this is not always the case, and I told you that we would also see that they are computationally beneficiable for us in some cases depending upon our coefficient metrics, but we'll see that later. So that's how what we covered everything. Then I told you for the direct methods for system of linear equations, we have three number of methods as we already covered. And what are those three methods that we saw in our previous lecture was our Gauss elimination, right? Okay, that this is Gauss elimination, and then LU decomposition and Gauss Jordan. And I have told you everything inside it, what it goes, how it connects with direct method, why this is a direct method, what is the internal mechanism, everything I explained quite in detail. Okay, so all those students who are just watching this lecture and they have not watched the previous lecture, I will request all of you to please watch the previous lecture, because it will give you really basic things or the foundation of this course module 2, which for which I started this Python course. Okay, so please watch it, it's going to make your foundation for the numerical methods. So no need to worry, I have given the link in the description box, so you can check the description box and you can find the link and you can watch the previous lecture. Okay, that's very important one, so don't miss that out. Okay, so let's proceed with our today's agenda. As I told you, we have to cover Gauss elimination method, and then we have to understand its algorithm. Okay, so proceeding with it, we have to understood Gauss elimination method, which is a direct method for solving system of linear equation. So this is Gauss elimination method. So already I have given you the explanation in the previous lecture. That is why I'm emphasizing those who have not watched, please watch it. It converts our AX is equals to B form to what form? That is UX is equals to C. Okay, where U is a upper triangular matrix. So this Gauss elimination method is most familiar method for solving the simultaneous equation, and basically this method is consisting of two phases, or we can say two parts. The first part is called as the elimination phase. Okay, this consists of two parts. The first part is the elimination phase,
and the second part is the solution phase, where we find out the solution to our system, that is solution phase. So what does this elimination phase does? This elimination phase simply transforms what? Transforms Ax is equals to B to Ux is equals to C. Okay, so the elimination phase does what? It simply transforms our original equations to the equivalent equations, and then by back substitution we solve the equations, and that is our solution phase. By back substitution we solve our system, or we get the solution for our system. So that's how the Gauss elimination method works in two phases. The first one is the elimination phase and the second one is the solution phase. So now going into what does the elimination phase looks like. So we will take one example for understanding Gauss elimination method and its internal mechanism, and then we will go for the our algorithm, that how we are going to create the program for the Gauss elimination method in Python. Okay, so let's take an example, which is 4x1 minus 2x2 plus x3 is equals to 11. Then we have minus 2x1 plus 4x2 minus 2x3 is equals to minus 16. Then we have x1 minus 2x2 plus 4x3 is equals to 17. We have this system which contains three linear equations, three simultaneous linear equations, and we have to solve it. So we are applying here what? Gauss elimination method, and now we are looking at the first phase, which is the elimination phase. For what? For these simultaneous linear equations. Okay, we are looking about this elimination phase, and we know that elimination phase is simply transforming Ax is equals to B to Ux is equal to C. It means it is going to use the elementary operations for converting our original equations to the equivalent equation. Okay, but before that you have to understand few things, that this elimination phase utilizes only one of the elementary operation. Okay, it uses only last elementary operation that I told you, last elementary operation. And what was the last elementary operation that I told you in the last lecture? That it multiplies a equation by a non-zero constant, and then it subtracted it from the another equation. Okay, so that's why we call it this equation. और अगर मैं थोड़ा सा सिम्बॉलिकली बात करूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि मेरे पास सपोज इक्वेशन आई है, उसमें मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी? इक्वेशन आई minus lambda times equation j. Okay, where I is not equal to j. So that's how our elimination phase works. So we are going to just use only this single elementary operation for applying the elimination phase. And one important thing again, that the equation being subtracted, okay, the equation being subtracted is called as the pivot equation. So in this case, which equation is going to be our pivot equation? This jth equation. Okay, this jth equation is called as pivot equation. We will see in the example that we are solving what is the pivot equation and how it changes again and again. Okay, so the equation that is being subtracted is called as the pivot equation. So now let's start the elimination phase, and remember that we start the elimination phase by taking the first equation to be the pivot equation. Okay, and then choosing the multipliers lambda to eliminate the rest of the variables down that row. So if I talk about this one, 4x1 minus 2x2 plus x3 is equals to 11. So in this case, our first row, for the first one, the first row, that is if I call that our ith row or first row, this is our pivot equation. Okay, so first row equation is called as the pivot equation for the first step. So obviously we are not going to do anything with our first equation because we have to convert it into ux is equals to c. So where u is what? u11
then u12, u13, then 0, then u22, u23, and then 0, 0, u33. So obviously we don't have to do anything with it. So this pivot equation for this particular step, this is the pivot equation, and we don't have to do anything. But now the next task is to do what? To make this element as 0, which is at the position what 2 1 2 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसे हमें 0 करना है. तो उसके लिए हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प लेंगे. ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं देखो जरा. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो हमारे, सपोज करो मैं इसे नाम दे देती हूँ इक्वेशन ए, दिस इज इक्वेशन बी, and this is our equation C. Please understand it very carefully. If you have any problem, please let me know. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन B है मेरे पास, उसमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे और इक्वेशन B को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. कैसे? उसे 0 बनाने के लिए हम ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है. ठीक है, तो हम ऐड कर दें क्या, 0.5 ऑफ इक्वेशन A. और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ए जो है वो हमारे पास पिवट इक्वेशन है फॉर द टाइम बीइंग. तो क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे देखो 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 2 बन जाएगा, और ऐड कर दूंगी तो x1 एलिमिनेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन से. तो अगर ऐसा हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो फाइनली इक्वेशंस क्या बनेगी, देखो जरा. पहली वाली इक्वेशन एज इट इज रहेगी 4x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11. देन सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 3x2 माइनस 1.5x3 इज इक्वल टू माइनस का 10.5. एज यू सी हमने यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया. ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था. ठीक है, आई होप इट्स फाइन. देन अभी हमें इस x1 को भी एलिमिनेट करना है अगेन. तो कैन यू सी what else we can do? yes, हम 1/4 से डिवाइड करें, मतलब 0.25 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें. तो अनदर एलिमेंट्री ऑपरेशन यहीं पे हमारे पास क्या होगा कि जो इक्वेशन सी है हमारे पास, और पिवट इक्वेशन को ही यूज करना है तो वो तो सेम रहेगी, और उसमें हम क्या कर दें 0.25 टाइम्स इक्वेशन ए कर दें, है ना. बताया मैंने आपको 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस x1 बन जाएगा, ये x1 बन जाएगा, और बस काम हो जाएगा अपना. 0 बन गया, x1 एलिमिनेट हो गया थर्ड इक्वेशन से. तो क्या मिला, माइनस का 1.5x2 प्लस का 3.75x3 इज इक्वल्स टू 14.25. ठीक है, अभी के लिए ये ए इक्वेशन हो गई, ये बी इक्वेशन हो गई, ये सी इक्वेशन हो गई. तो देखो हमारे पास पहला हमने स्टेप कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड इक्वेशन को से x1 को एलिमिनेट किया और थर्ड इक्वेशन से. अभी देखो ये जो पहली दो इक्वेशंस है ये अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में आ गई है, बट ये नीचे भी हमें x2 को फिर से एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे जो सेकेंड वाली इक्वेशन होगी वो अब आपकी पिवट इक्वेशन होगी. आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ पिवट इक्वेशन. तो यानी कि अब इस इक्वेशन को यूज करके आप इसके नीचे की बाकी सारी इक्वेशंस को अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. तो व्हाट एलिमेंट्री ऑपरेशन यू विल यूज, इक्वेशन सी में अप्लाई करोगे, और क्या इक्वेशन सी, और ऐड कर दोगे क्या करके, देखो 0.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, इक्वेशन बी को, तो वो क्या बन जाएगा, 1.5 बन जाएगा. ऐड करोगे तो x2 एलिमिनेट हो जाएगा थर्ड इक्वेशन से. तो फाइनली ये कन्वर्ट किस में होगा, 4x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 11. देन दिस इज 3x2 माइनस 1.5x3 इज इक्वल्स टू माइनस का 10.5. एंड देन सिंपली इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 3x3 इज इक्वल्स टू 9. सो नाउ यू सी this was simply ax is equals to b, right? This was ax is equals to b, but now we have converted it into ux is equals to c, और ux is equal to c में convert करते ही हमारा जो elimination phase है वो खत्म होता है. And now you are understanding the meaning of direct method. I hope so you are understanding, because मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट मेथड में एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करोगे और ओरिजिनल इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करोगे इक्विवेलेंट इक्वेशंस में. तो ये जो पहला 3 सेट है वो भी इक्विवेलेंट इक्वेशन ही है, और इसका जो सोल्यूशन है वो शुरू में जो 3 इक्वेशन लिखी है उनका है. देन ये भी इक्विवेलेंट इक्वेशंस ही हैं, और जो इस
इक्विवेलेंट इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा वो ही आपकी ओरिजिनल, ये 3 इक्वेशंस जो आपने लिखी हैं, जो सिस्टम लिखा है ओरिजिनल, उसका सोल्यूशन होगा। ओके, तो एलिमिनेशन फेज यहाँ एंड होता है और अब यहाँ से क्या शुरू होगा आपका। ओके, लेट मी जस्ट राइट दिस थिंग हियर, ux इज इक्वल्स टू c, और अब यहाँ से शुरू होगा आपका सॉल्यूशन फेज। ऑलराइट, दिस इज योर सॉल्यूशन फेज। खत्म होता है आपका यहाँ पे एलिमिनेशन फेज एंड सॉल्यूशन फेज स्टार्ट होता है। और मैंने बोला था ना हम बैक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, सी बैक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, तो यहाँ से हमको x3 की वैल्यू 3 मिलेगी, उसको जब आप सेकेंड इक्वेशन में यूज करोगे तो आपको आपका x2 मिल जाएगा। और यूज करो, देखो 3 यहाँ पे लिखोगे तो माइनस का क्या बनेगा 4.5, तो माइनस का 4.5 यहाँ पे आएगा तो 10.5 माइनस 10.5 प्लस 4.5 डिवाइड बाई 3, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 2। ओके, ऑल ऑफ यू कैन ऑल्सो चेक इट, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी -4 प्लस 3 -1, इधर आया 12, ठीक है, तो आपके पास x1 मिल जाएगा। यस, इज इट क्लियर? कमेंट सेक्शन का यूज करो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट आस्क मी एंड आई एम गोइंग टू give you a reply for your problem. Okay, so यहाँ पे क्या बना, -2 4 and 4 plus 3 7, all right, and वापस से 11 में हम उसे अप्लाई करेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। so that's how the back substitution phase work or the solution phase work, ठीक है। और इसी के करस्पॉन्डिंग देखो, अगर हम देखें कि ये सिस्टम दिख कैसे रहा है, तो इनिशियली ये कैसा दिख रहा था, इट वॉज लुकिंग लाइक 4 -2 1 -2 4 -2 देन 1 -2 4, एंड दिस वॉज लुकिंग, अगर मैं आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करूं, ठीक है, तो ये कैसा दिख रहा है 11 -16 एंड 17। आप देखो ये धीरे धीरे कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है ux इज इक्वल टू c की तरफ। ये वाली इक्वेशन से क्या बना 4 -2 1, और पहली इक्वेशन एज वी नो सेम ही रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पिवट इक्वेशन है। देन 0 3 -1.5 एंड माइनस का 10.5, तो ये हमारा पहला स्टेप था, देखो अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। 0 -1.5 3.75 एंड दिस इज 14.25, दिस वॉज आवर फर्स्ट स्टेप। और फिर अगला स्टेप लेते ही देखो ux इज इक्वल टू c का फॉर्म आ गया, ठीक है, दिस इज 0 3 -1.5 10.5 एंड दिस इज 0 0 3 एंड 9। सी बन गई हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट मेथड। ओके, और यहां से देखो बैक सब्स्टिट्यूशन ही तो यूज किया, इससे x3 की वैल्यू 3 मिली, फिर एक स्टेप पीछे गए, बैकवर्ड डायरेक्शन में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x3 की वैल्यू। बैक सब्स्टिट्यूशन बोला क्यों है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टू गेट अदर अननोन्स, तो x2 की वैल्यू -2 एंड x1 की वैल्यू 1 आ गई। ओके, आई होप इट्स क्लियर, दिस इज हाउ आवर गॉस एलिमिनेशन मेथड वर्क्स। ओके, but this was all about mathematics, okay, like if manually we are solving any system of linear equation using Gauss elimination as one of the direct methods, then this is the procedure, this is how mathematically we do solve manually. Okay, but if we have to make a program or we have to write it in our Python language, then what should be the algorithm? Because अगर आपने जो मैंने मॉड्यूल 1 में कराया है, मॉड्यूल 1 में मैंने कुछ क्वेश्चन, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए, लाइक इवन नंबर, ऑड नंबर चेक करो या प्रिंट करो 1 to 100 तक। सो I told you that first you need to understand the logic behind that problem or logic behind creating that code। तो लॉजिक को क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आपके पास होनी चाहिए दैट आप बनाओगे कैसे कोड, ठीक है। So to understand the algorithm for Gauss elimination, let's proceed, and it's quite easy, okay, there is no problem that you cannot understand it. So सपोज करो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट गॉस एलिमिनेशन के 2 फेज हैं, एक है हमारे पास एलिमिनेशन फेज, ठीक है, तो हमारा एल्गोरिथम जो है यानी प्रोग्राम बनाने का जो आइडिया है वो भी ऐसा ही होगा। हम पहले एलिमिनेशन फेज के बारे में देखेंगे एंड फिर हम जो हमारा सॉल्यूशन फेज है दैट इज बैक सब्स्टिट्यूशन फेज, उसके बारे में हम बात करेंगे।
बट हम सिस्टम को अपनी बात समझाएं कैसे, बस हमें वो एल्गोरिथम बनाना है, ठीक है। बट फॉर मेकिंग यू पीपल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे एंड इन एन ईजी वे, सपोज करो कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ए एक्स इज इक्वल्स टू बी से हमें उसको यू एक्स इज इक्वल्स टू सी तक लाना है, बट उसके बीच में हमको एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करने हैं। जैसे हमने पहला वाला जो एग्जाम्पल किया, देखो पहले ये जो सिस्टम था ये कुछ ऐसा दिख रहा था, है ना, वापस से जब लगाया तो कुछ ऐसा बना। तो कैन यू सी, इतना पार्ट केवल अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में आया है, बाकी अभी नीचे का नहीं आया है, हमें वापस ये 0 बनेगा तब आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ करते हैं, हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो फर्स्ट के रोज है मैट्रिक्स की वो ऑलरेडी अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है या ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स बनाती हूँ मैं आप लोगों के समझने के लिए, एंड आई होप उस मैट्रिक्स की हेल्प से समझाना जो है आपको एलिमिनेशन फेज वो थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम देयर इज नो वे यू कैन क्रिएट द कोड। तो मैंने क्या बोला, हमें सपोज करना है कि जो इनिशियल फ्यू के रोज हैं वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में। तो दिस इज A13 एंड देन सपोज करो यहाँ पे हमारे पास एक kth कॉलम है, देन A1j, और ऐसे ही करते करते दिस इज A1n, ठीक है। और क्योंकि हमें पता है हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के साथ डील कर रहे हैं तो हमारे पास B1 भी होने वाला है, ठीक। देन 0 एंड देन वी हैव A22, A23, this is A2k, then we have A2j and then we have A2n, ठीक है। एंड एक और रो ले लेते हैं, दिस इज A33, then you have A3k and A3j। बस अगर आपने ये समझ लिया पेशेंटली बैठ के तो यू कैन क्रिएट द कोड, ओके, देयर इज नो गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम इन क्रिएटिंग द कोड। अब मैंने आपको क्या बोला है कि इनिशियल कुछ रोज जो कि k नंबर ऑफ रोज हैं वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, मैंने ऐसा बोला आपको, ठीक है। तो सपोज करो कि जो इनिशियल k रोज हैं वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, तो ये ऐसा ही कुछ दिखेगा ना, 0 0, और यहाँ पे ये हमारा kth है, तो इनिशियल k रोज हो चुकी हैं, तो ये ऐसा ही कुछ दिखेगा ना हमारे पास। yes or no, just let me know in the comment section। this is pk, इनिशियल k रोज है ऑलरेडी, तो ये देखो अपर ट्राइंगुलर फॉर्म यहाँ तक तो हमको नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, सी ये इतना अपर ट्राइंगुलर फॉर्म हमको नजर आ रहा है, लेकिन मैंने बोला है सिर्फ इतना ही अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में है, रेस्ट ऑफ द चीजें अभी अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में नहीं है। तो फिर वो कैसी नजर आएंगी हमको, क्योंकि हम एलिमेंट्री ऑपरेशन तो ऑलरेडी लगा चुके हैं ना, तो वो भी तो अभी यहाँ पे 0 तो हो गई, बट इसके नीचे क्योंकि जब हमने इनको कन्वर्ट किया था अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में लाने के लिए, तो ये तो अपने आप एलिमिनेट हो गए होंगे ना, x1 x2, बस ये एक एक के नीचे वाली सारी वैल्यूज रह गई होंगी। तो यहाँ पे सपोज करो दिस इज योर aik, ठीक है, एंड देन दिस इज योर aij एंड दिस इज फाइनली ain, एंड दिस इज ith रो, तो दिस इज bi, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस। एंड फाइनली हम लास्ट रो लिख लेते हैं अपनी, दिस इज 0, देन दिस इज 0 0, और क्योंकि n क्रॉस n की ही मैट्रिक्स है तो दिस इज nk, देन दिस इज nj। ये मैट्रिक्स समझने में ही सारा लॉजिक छुपा हुआ है आपका, ठीक है, दिस इज bn। अगर ये समझ आ गया तो इट मीन्स यू अंडरस्टूड एवरीथिंग परफेक्टली, ओके। सो बस ये मैट्रिक्स समझो और फिर जो प्रोसेस है हमारा वो हम समझते हैं। तो ये मैट्रिक्स किस बिहाफ पे बनाई है मैंने, ये मैट्रिक्स मैंने इस बिहाफ पे बनाई है कि हमारे पास कुछ ओरिजिनल सेट ऑफ इक्वेशंस थी, यानी कि एक ओरिजिनल सिस्टम था, उसमें हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा लगा के इनिशियल के रोज को अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हियर, कि हमने उसको इनिशियल के रोज को अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसके नीचे की जो अभी रो है वो अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट होना बाकी है, ये एल्गोरिथम हम लगा रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे की रोज को
एलिमिनेशन फेज में अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है टू कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म दिस ए मैट्रिक्स इनटू अ करस्पॉन्डिंग यू मैट्रिक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो व्हाट वी विल डू फॉर दिस। अब हम एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, बट इन दिस केस जस्ट टेल मी, जो मेरी kth रो होगी वो मेरी पिवट रो होगी कि नहीं होगी, या पिवट इक्वेशन होगी कि नहीं होगी? यस होगी, यानी कि जो हमारे पास kth रो है वो हमारे पास पिवट रो होगी, या वो हमारे पिवट इक्वेशन होगी। तो इसको हमने कह दिया ये हमारे पास पिवट रो है। और अब मान लो कि ये आई जो है ये इसके नीचे की ही इक्वेशन है, यानी कि kth रो के बाद जो नेक्स्ट रो है वो ith रो है। तो इसका मतलब हम इस ith रो को कन्वर्ट करने वाले हैं यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, करेक्ट? तो पिवट इक्वेशन का यूज करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे देखो aij जो है उसमें हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, और वो क्या होगा aij माइनस, ठीक है, और लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू जो भी होगी, और ए के जे कर देंगे हम। और आपको पता है क्योंकि सिर्फ इस एलिमेंट पे तो ये अप्लाई नहीं होगा, फिर इस रो में जितने एलिमेंट है वो सबके लिए अप्लाई होगा। तो रो तो फिक्स रहेगी आई, लेकिन कॉलम तो चेंज होगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो ith रो करनी थी वहां पे ए आई के न लिख के जे लिखा है, क्योंकि ए आई के +1 ए आई के +2 अप टू ए आई एन तक जाएगा। और जो जे में वेरिएशन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, जे की वैल्यू में, जे की वैल्यू में के से लेकर कहाँ तक होगा, एन तक होगा। यस ये इंडेक्सिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही आपको कोड में हेल्प करेगा। कोड में हम बिल्कुल ऐसे ही लिखने वाले, सो यू शुड अंडरस्टैंड हाउ दिस इंडेक्सिंग वर्क्स। ओके, बात समझ आ गई? पहला क्या होगा, ए आई के में ए आई के माइनस लैम्डा ए, क्या कर देंगे हम लोग, ए के कर देंगे। फिर हम ए आई के +1 पे करेंगे तो जे की वैल्यू के +1 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वहीं पे यही सेम ऑपरेशन ये बी वाले पे भी तो हो रहा है। यस ये सेम बी वाले पे भी हो रहा होगा। तो जो हमारे पास क्या लिखेंगे हम, बी आई वाला लिखेंगे, क्योंकि ith रो चल रही, वो बी आई माइनस लैम्डा बी के हो जाएगा, क्योंकि के वाला इक्वेशन जो है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास पिवट है। If you have understood only this much, then we are about to end our elimination phase. और कैसे, जरा एक बात समझो ध्यान से। मैंने आपको क्या बोला, लेट मी जस्ट इरेज दिस एल्गोरिथम 1। आई होप आप लोग नोट कर रहे होगे, तो ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो व्हाट आई टोल्ड यू दैट ये हमने एक रो के लिए किया है। Okay, how do we started our algorithm? Let's repeat it one more time. Supposing that first initial k rows are already transformed into upper triangular form, and now we have to transform the rest of the equations into upper triangular form. तो वो हमने ऐसे ही लिख दिया, इनिशियल के रोज को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब हमें उसके नीचे की रो को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो उस केस में के इक्वेशन जो होगी या kth इक्वेशन होगी वो पिवट इक्वेशन होगी। और अब आपको उसके नीचे की इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करना है, तो सपोज करो ये ए आई के हमारा जो है ये kth इक्वेशन के बाद वाली, जस्ट उसके बाद वाली इक्वेशन है। तो उसमें आप क्या करोगे, ए आई के माइनस लैम्डा टाइम्स ए के लगाओगे, सो दैट ए आई के बिकम्स 0। लैम्डा आपको ऐसा चूज करना है कि जो आपका ए आई के को 0 बना दे। पर वो सिर्फ इस एक एलिमेंट पे तो नहीं होगा ith रो के, वो इस हर एक एलिमेंट पे होगा। तो हमने कॉलम चेंज करना है ना, रो तो सेम रहेगी, इसलिए मैंने क्या किया, ए आई जे को क्या लिखा, ए आई जे माइनस लैम्डा के जे, और जे जो है वो कौन से कॉलम से कौन से कॉलम तक जाना है, ये kth कॉलम है, ये k+1, देन ये nth, ठीक है। ये इनिशियल फेज का फर्स्ट स्टेप है। अब एक बात बताओ, इसी प्रोसेस को तो आपको रिपीट करना है ना, राइट? अब अगली बार क्या होगा, क्योंकि ये ए आई के 0 हो गया है, तो ये ith वाली जो हमारे पास क्या है रो होगी, वो क्या बन जाएगी, वो पिवट हो जाएगी। लेकिन
फिलहाल के लिए समझना ये है कि जब आपको ये AIK को जीरो कर रहे हो तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो करने पड़ेंगे, मतलब AIK जीरो होगा, AI+1K जीरो होगा, है ना। देखो हमने जो एक एग्जाम्पल पढ़ा था अभी, देखो तो ये 4x1 माइनस 2x2 ये जो ऑपरेशन लगाया है वहां पे हमने दोनों इक्वेशंस में से x1 को एलिमिनेट किया था ना। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ था, ओके कमिंग टू दिस वन, यहाँ पे दोनों ही x1 के कोफिशिएंट प्रेजेंट है, तो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन दोनों इक्वेशंस में से x1 को एलिमिनेट करता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल xk होगा वो एलिमिनेट हुआ, लेकिन इसके नीचे की इक्वेशंस पे भी हम सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे फॉर एलिमिनेटिंग दिस xk फ्रॉम ऑल द इक्वेशंस। तो मतलब हमको रो में भी चेंज करना है। आई होप नाउ यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, है ना। तो अब हमको ये रो भी चेंज करनी, तो ये हमको कितनी बार रिपीट करना है, मतलब हमको आई में वेरिएशन लाना है। तो आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k+1 k+2 अप टू n। आई होप यू अंडरस्टूड। और मैंने k+1 क्यों लिखा है, इंडेक्सिंग समझा रही हूँ इसलिए बोल रहा है, क्योंकि kth रो तो पिवट इक्वेशन है ही ना, मतलब kth इक्वेशन पिवट इक्वेशन है ही ना, उसके बाद वाले सब इक्वेशंस को करना है। तो ये आई शुरुआत कहाँ से होगा, उसके नेक्स्ट वाली इक्वेशन ही तो है, नेक्स्ट रो ही तो है। तो ये आई जो है वो k+1 से लेकर n तक यानी लास्ट रो तक वैल्यू लेगा हमारे पास। अंडरस्टूड एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये हमने इस वाले के लिए किया, और अब हम जे को भी फाइनलाइज कर लेते हैं। जब हम बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो सॉरी के की वैल्यू को कॉलम, है ना, क्योंकि हमने तो ये मान के एल्गोरिथम बनाई है, बट अब तो हमको शुरू से सारा काम करना पड़ेगा ना। तो आई ये वैल्यू लेगा k+1 से n तक, और जो हमारे पास k है वो कौन सी वैल्यू लेगा, 1 से 2 से n-1 तक। लेकिन ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल के लिए आपको इतना समझ आना चाहिए, क्योंकि एंड में क्लास ओवर होते होते मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगी, ठीक है, जिसके हिसाब से ही इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी, जो कि चलो अभी बता देते हैं। अब तक जितने भी लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, मैट्रिक्स पढ़ा होगा, आप सबने मैथ्स में, BSc में, MSc में, तो हम क्या करते हैं, हम इंडेक्सिंग शुरू करते हैं A11 A12, मतलब हम इसे फर्स्ट रो मानते हैं, और अगर n×n की मैट्रिक्स है तो इसे हम nth रो मानेंगे, है ना। इसको हम फर्स्ट कॉलम मानते हैं, इसको हम nth कॉलम मानते हैं, वो ठीक है। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, j = 1 एंड j = n, यानी i = 1 i = n, वो ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, जब हम डील करते हैं पाइथन पे, मैटलैब पे, वेरेवर वी वर्क, सो या C++ पे, मोस्ट ऑफ द टाइम इंडेक्सिंग कैसे हम लेते हैं, फर्स्ट रो तो बोलते हैं लेकिन उसका इंडेक्सिंग हम 0 रखते हैं, लास्ट रो तो हम बोलते हैं, nth रो तो बोलते हैं, बट उसका इंडेक्सिंग n-1 होता है। तो j = 0 से n-1, तो n×n का मैट्रिक्स हम ऐसे लिखते हैं पाइथन, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो आपका k में वेरिएशन कराया था उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया, क्योंकि मैं आपको वो बाद में समझाऊंगी, ठीक है। और चलो अगर अब आपको समझ भी आ जाए तो मैं k की वैल्यू को 0 1 to n-1 लिखूंगी, तो आपको समझ आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। kth रो पिवट रो है, तो पहला जब सबसे पहला हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो देखो क्या होगा, k की वैल्यू 0 होगी ना, मैंने बोला है kth रो पिवट रो है, तो ये 0th रो हुई ना हमारी, ये है ना, रो फर्स्ट जो है वो 0 है, तो वही तो पिवट हो गई। अंडरस्टूड। और k की वैल्यू जब 0 है तो i की वैल्यू k+1 से, मतलब i की वैल्यू 1 है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, जल्दी देखो, वो यहीं से तो होगी, कहाँ से, इस वाले एलिमेंट से, क्योंकि अब तो ये 0 0 इंडेक्सिंग हो गया, तो यही तो बनेगा 1 1 हमारे पास, तो हम 1 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि j की वैल्यू भी तो k से ही शुरू हो रही है, मतलब इस वाले एलिमेंट से, है ना। तो एक अगर 3×3 पे लिख के देखोगे, सो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आई होप दैट मेक सेंस नाउ, ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो, है ना। तो अब अगर हमें यहाँ पे 0 से n-1 लिखा तो आपको सब चीजें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, ठीक है। सो ये है हमारे पास क्या, दिस इज आवर एल्गोरिथम
for the elimination phase for Gauss elimination method. I hope it is clear. एक बार अगर नहीं समझ आता है तो प्लीज वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर अगेन एंड अगेन 1 or 2 टाइम, देन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट फॉर श्योर. ठीक है, अब इसी को हमको कोड में लिखना है, कंप्यूटर के लैंग्वेज में लिखना है. तो वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जहां पे मैं कोड पे डिस्कशन करूंगी. ठीक है, और बैक सब्सटीट्यूशन फेज यानी सोल्यूशन फेज तो बहुत इजी है हमारे पास, है कि नहीं? सोल्यूशन फेज बहुत इजी. तो सोल्यूशन फेज इजी कैसे है? सपोज करो आफ्टर गॉस एलिमिनेशन, ठीक है, आफ्टर गॉस एलिमिनेशन हमारे पास ये जो ए बी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है. ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें? फॉर एग्जाम्पल दिस इज U11, U12, U1n. बट U1n में क्यों नहीं लिख रही हूँ? क्योंकि ये तो पिवट थी तो सेम ही रही होगी. तो A11, A12 एंड दिस इज A1n एंड यहाँ पे हमने B1 लिया. ठीक है, देन 0, दिस इज A22, A2n, देन B2. ठीक है, 0, 0, देन ANN. ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे हमें ANN मिला होगा, BN. तो ये अगर मैं x के xn निकालू, फाइनली जो xn निकालू मैं, तो वो क्या होगा? BN बाई ANN निकलेगा. यस, बैक सब्सटीट्यूशन लगाएंगे तो xn माइनस 1 निकलेगा विच इज BN माइनस 1 माइनस का क्या निकलेगा हमारे पास? हमें xn में मल्टीप्लाई हुआ होगा यहाँ पे an. ठीक है, an इंटू xn, तो वो आप निकाल सकते हो, सिंपली निकल आएगा. तो बैक सब्सटीट्यूशन लगाओगे तो अगर मैं xk की वैल्यू इवेल्युएट करूं तो उसके लिए कुछ ऐसा लिखा होगा, a k xk, देन दिस इज a k, देन k plus 1, xk plus 1, and simply this is going to be a k n xn is equals to bk. मैं अब मैं xk निकाल सकती हूँ कि नहीं निकाल सकती हूँ? तो देखो xk तो यही बनेगा ना, bk माइनस समेशन ऑफ a k j x j, जहां पे j कहां से कहां तक जाएगा? k plus 1 से n तक. ठीक है, और डिवाइड कर देंगे हम किससे? डिवाइड कर देंगे a k से, और k की वैल्यू n माइनस 1 से n माइनस 2 अप टू 1 तक जाएगी. ठीक है, तो ये एल्गोरिथम है फॉर व्हाट? फॉर द सब्सटीट्यूशन फेज और द सॉल्यूशन फेज. सिंपल है. अब इसी चीज को हमें कोड में यानी पाइथन की लैंग्वेज में लिखना है. तो ये हम कल देखेंगे कैसे लिखते हैं. आई होप ये समझ आया होगा. ये kth रो है क्योंकि इसके आगे के जो कोफिशिएंट्स हैं सब 0 हो गए होंगे ना, तो kth रो के लिए मैंने लिखा. अब bk में ये सब कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और बैक सब्सटीट्यूशन है तो आपको xk plus 1 से लेकर xn तक वैल्यू ऑलरेडी नोन होगी, पीछे से आ ही रही है वो, और एक एक से डिवाइड और कर देना है. और ये k कहां से कहां तक जाएगा? n माइनस 1 से 1 तक, क्योंकि मैंने आपको बोला ना ये n माइनस 1th रो है, ये n माइनस 2 है, और ये n माइनस 3, और फाइनली ये 1th रो होगी और ये 0. तो आपको देखो अगर k की वैल्यू n माइनस 1 होगी तो आपको xn माइनस 1 मिल जाएगा, n माइनस 2 होगी तो xn माइनस 2 मिल जाएगा. तो मैंने बहुत जनरल वे में लिखा हुआ है. बट स्टिल अगर एल्गोरिथम में थोड़ी भी प्रॉब्लम है, डोंट वरी, जब मैं इसका कोड आपको प्रोवाइड करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में तो वहां पे मैं एल्गोरिथम के बारे में एक बार और डिस्कशन करूंगी. ठीक है, सो दिस वाज आवर गॉस एलिमिनेशन मेथड, जहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया. ठीक है, और इसके 2 फेज होते हैं. पहला एलिमिनेशन फेज जो कि केवल और केवल लास्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करता है, ये वाला जो मैंने आपको बताया. एक एग्जाम्पल लिखा, उसकी हेल्प से मैंने आपको ये इक्विवेलेंट इक्वेशन समझाई एंड करस्पॉन्डिंग ux इज इक्वल्स टू c समझाया, एंड देन वी अंडरस्टूड अबाउट द एलिमिनेशन फेज algorithm and then about the substitution phase algorithm. ठीक है, so that's it for today's lecture. Hope that you people are enjoying this series. Please let me know about your feedback. ओके, एंड एक बार अगर नहीं समझ आता है प्लीज वॉच इट अगेन. और जो मैंने आज आपको n क्रॉस n पे समझाया है, प्लीज ओके, दिस इज अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू. प्लीज यू ट्राई इट बाय टेकिंग n इज इक्वल्स टू 3, और इंडेक्सिंग को 0 1 2 रखना, 0 1 2 रखना कॉलम्स और रोज की. और फिर देखना जो मैंने आपको बात समझाई है i j और k की इंडेक्सिंग, वो आपको समझ आती है नहीं. दिस इज योर होमवर्क. प्लीज डू इट टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम क्लियरली. ओके, so that's it for today. Thank you so much for watching the lecture,
and we will meet soon in another lecture with the program of Gauss elimination method in Python. So till then, bye bye, take care, and if you have any problem, please let me know in the comment section.